دو تین دن کو جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچانے کے جو ہے بہت زیادہ طریقے ہیں، اور دنیا میں بلائی جو لوگ دوسروں کی بلائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بلائی کرتے ہیں۔ اس طریقہ سے دنیا اور آخرت کی بلائی جو ہے دنیا اور آخرت کی بلائی ہمارے لیے بہترین چیز ہے، اور ہم انشاءاللہ جو ہے دنیا اور آخرت کی بلائی میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ تو آج جو بھی سلسلہ جاری رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک حکیم کی تعریف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں حکیم کی عزت، شہرت اور ان کی جو ہے تمام کارنامے ہمارے ذہن میں آ جائیں اور ہم اچھے حکیم بن سکیں، اور ہمارے اندر جو ہے ان کے لیے محبت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے، ان کے لیے جو ہے ہماری طب سے ہمارا جو ہے معالجات کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ جذبہ اور جنون پیدا ہو جائے تاکہ ہم بہترین طبیب جو ہے وہ بن جائیں۔ اصل میں جتنے بھی حکمہ کا ہم نے ذکر کیا اور جو آگے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کریں گے، تو اس کی جو ہے ریزن یہی تھی کہ ہم جو ہے وہ اپنے پیشہ سے محبت پیدا کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ بھی اپنے پیشہ سے محبت کریں، اپنے بزرگوں سے محبت کریں، اور جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ وہ ہمارے باوجداد کی چیزیں کو سمجھ سکے اور جان سکے۔ تو اس طریقہ سے ہم روزانہ کے بنیاد پر ایک حکیم صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایک حکیم صاحب کا تذکرہ کریں گے، لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ ہمارے دوست جو ہے وہ تو حکیم ہی ہے، لیکن ہمارے بھائی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر آف نیچرل میڈیسن بن جائیں، جس کی وجہ سے میں میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہوں، مختلف جگہوں پہ اسٹیجوں پہ بھی گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو حکیم ہی کہا ہے۔ ریاض حسین ڈب کا ابھی تک میرے پاس جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، جنہوں نے مجھے وزٹنگ لیکچرار کے طور پہ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا تھا ایسٹرن میڈیسن میں، لیکن صرف اور صرف میں حکیم لا کلاس میں کہوں اس لیے مجھے جو ہے نکال دیا گیا تھا یا لیکچر نہیں دیا گیا تھا، لیکن میں حکیم ہوں اور اپنے آپ پہ فخر کرتا ہوں، حکیم ہونے پہ فخر کرتا ہوں۔ اس لیے جو ہے مجھے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ڈر اور خوف نہیں ہے۔ میں مختلف اسٹیجوں پہ جا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو حکیم کہتا ہوں، کیونکہ میں حکیم ہوں، اور حکیموں کی جو ہے وہ میں نمائندگی کرتا ہوں ایک ہاسپٹل کے اندر۔ تو اس لیے جو ہے مجھے حکیم کہنے میں جو ہے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک حکیم ہوں، ہزاروں ڈاکٹروں کے اندر ایک حکیم۔ ہمارا اور جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کا بہت زیادہ فرق ہے تشخیص میں اور علاج میں، ہر چیز میں ہمارا جو زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو ان کو میڈیکل ریب آ کے کہہ جاتے ہیں وہ اسی کو جو ہے وہ اپناتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے
अपने जहन को इस्तेमाल करके अल्लाह के जो है वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जो है हम मरीजों का इलाज करते हैं और उनका दुख सुख बांटते हैं। तो आज भी जो है 8वें रोज भी हड़ताल जारी रही, लेकिन सिर्फ डिपार्टमेंट जो है वो 2 बजे तक खुला रहा। तो इस तरीका से जो है तबी मशवरे जो है वो जारी रहे। तो हम जो है मशवरे देते हैं, लेकिन बहुत से लोग आके हमें मना करते हैं कि आप हड़ताल में शामिल हो। लेकिन ये है कि हम हड़ताल में शामिल है क्योंकि पर्ची नहीं बनती, इस तरह से हम तो हड़ताल में शामिल है। लेकिन रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, कि हम दुनिया की में जो है वो कामयाबी और कामरानी चाहते हैं, इसलिए हम लोगों का इलाज जारी रखते हैं। तो इस तरीका से हकीम साहब का तज़किरा जो है, आज भी हम हकीम मोहम्मद अहमद खान का ही तज़किरा करेंगे और उनके 2 केसेस को हम डिस्कस करेंगे जो कि बड़े कामयाब और कामरान हैं। कि हम ये कहते हैं कि हमारे भाई जो है वो भी इस डगर पे जो है चल जाए और अपनी जो है वो भाईजात के जो पेशे से मोहब्बत करें। तो हरनास मीर अली नवाज खान को खतरनाक जो है वो अदालत हो गई, तो जिसकी वजह से वो हकीम साहब के पास तशरीफ लाए। वो एक बड़े जबरदस्त किस्म के नवाब थे, तो बासर नवाब थे। हकीम साहब के मतलब पे तशरीफ लाए तो हकीम साहब ने जो है वो पूरी लाइनें जो है फलांग के आ गए। जब मेरे पास भी रश होता था तो 4-4, 5-5 जो है बेंच भरे होते थे लोगों के। तो बहुत से जो है चौधरी टाइप जो है गाँव के लोग मेरे पास आते थे। अब भी मेरे पास जज, मजिस्ट्रेट और इसी तरीका से पुलिस के बड़े ऑफिसर और फैसलाबाद के बड़े बड़े जो है ये लोग जो है मेरे पास जो है वो एज ए तबीब जो है मेरे पास आते हैं। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं उनका इलाज करता हूँ। मैं अपने हकीम होने पे जो है वो अपने आप को फख्र महसूस करता हूँ इंशाल्लाह, और फख्र महसूस करता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तबाबत अता की है और मुझे हकीम बनाया है। तो इस तरीका से वो लाइन फलांग के आ गए। तो जब इस तरह के लोग आ जाते हैं हमारे पास तो हम उनको जो है वो थोड़ा सा oblige भी हमें करना पड़ता है। तो नवाब साहब को भी जो है वो oblige तो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि स्पेशल टाइम आप मेरे पास शाम को आए, इस वक्त जो है गरीब मरीजों का टाइम है, तो आप जो है स्पेशल टाइम लेके जो मेरे घर में तशरीफ लाए या अपने घर का एड्रेस जो है मेरे दुआ साज को लिखवा जाए, ताकि मैं जो है वो आपके घर को शाम को जो है वो जब भी वक्त मिला मैं जो है वो आपके घर पहुंच जाऊँ। तो इस तरीका से मेरे पास जब जज साहब तशरीफ लाते तो एएसआई के साथ होता था, मैं उनसे कहता हूँ कि यार तुम पर्ची बनवा लो। इसी तरह से जब कर्नल या जनरल वगैरह जो है तशरीफ लाते हैं तो मैं अपने पीएन से कहता हूँ कि साहब की पर्ची बनवा लाओ। इस तरीका से काम चल जाता है। तो हम जो है ये उनसे ताबन भी करते हैं, वो हमसे ताबन करते हैं। तो इस तरीके से हकीम साहब की जुर्रत और की दाद देते हैं। हकीम साहब ने जो है वो नवाब साहब को चेक ना किया, हालांकि अवाम ने जो है कोई भी जो है न किया। हमारे यहाँ पे ये होता है कि जो लाइन लगी हुई है मरीजों की जो है उसमें अगर जाके हम कहते हैं कि ये पर्ची बनवा दे तो अवाम जो है हमारे पीछे पड़ जाते, तुम कौन होते हो भी पर्ची पहले बनवाने वाले। तो इस तरीके से हम जो है वो अवाम से डरते हुए जो है ये पर्ची का जो है सिलसिला जो है खुद नहीं जाते, बल्कि जो है ये किसी और को भेज के जो पर्ची वहां से बनवा लेते हैं। तो क्योंकि हड़ताल की वजह से पर्चियां बंद होती है, इसलिए सिर्फ तिब्बी मसले होते हैं और हम दवाई नहीं दे सकते, ये हमारी मजबूरी है। तो ये सिलसिला जो है जारी रहता है। तो इस तरह हकीम साहब ने जो है शाम को उनको टाइम दिया और इस तरीके से हकीम साहब जो है उनके घर जो है वो तशरीफ ले गए। उन्होंने जो है वो हकीम साहब ने जो है मरीज को चेक किया। उससे पहले जो है उनके पास जो है 2 सिविल सर्जन जो है मौजूद थे। मैंने पहले जो है बात करने से पहले भी बताया है कि हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान तशखीस और तजवीज़ और जो हर चीज़ में हज़ारों कोहों का फ़र्क है, और उनकी तजवीज़ में भी और हमारे जो है वो तशखीस और तजवीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अभी जो है मैं हकीम साहब की बात जो है कह रहा हूँ, तो उन्होंने जो है 2 सिविल सर्जन उनके ऊपर जो है खड़े थे। तो हकीम साहब जब गए तो उनसे पूछा, भान जी जनाब आपने क्या तशखीस की है? तो उन्होंने कहा कि हमने इनको जातुल रिया जो है तशखीस की है, जिसको उर्दू जुबान में जो है जातुल रिया कहते हैं और इंग्लिश जुबान में उसको
नमूनिया कहते हैं, यानी कि हमने नमूनिया की जो है वो तशखीस की है। तो हकीम साहब जो है मुस्कुरा दिए और कहा कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग। तो इस तरीके से उन्होंने जो है फौरी तौर पे कहा कि हमने तो बड़ी जबरदस्त तशखीस की और इसका ही हम इलाज कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है ये उस वक्त जो है नवाब के ऊपर जो है गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जो है नवाब साहब का इलाज करवा रहा था। तो उन्होंने जो है सिविल सर्जन ने दोनों ने जो है वो फोन किया, जैसे अब हमारे यहाँ यहाँ पे कि हमारे जो भाई है उनकी जो है वो अप्रोच जो है फौरी तौर पर गवर्नर तक है या जो हमारे यहाँ पे वजीर आला तक है। तो वो जो है फौरी तौर पर उन्होंने फोन किया, जनाब के कोई हकीम साहब आ गए हैं जी। तो वो तो अजीब तरीके से जो इलाज करना उन्होंने शुरू किया है। तो इतनी बड़ी जो मतलब कि उनके सांस रुका हुआ है नवाब साहब का और उनको कहते हैं कि दही पिलाओ। तो हमारी समझ से बाहर नहीं है, तो हम तो जनाब अपना जी हथियार डाल रहे हैं। डॉक्टर साहबान ने कहा कि ये तो नवाब साहब तो चंद मिनटों में मर जाएंगे भी, जैसे कि इंसाफ ने तजवीज किया है। तो इस तरीका से जो है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है नवाब साहब को होश भी आ गया और नवाब साहब जो है वो बेहतरी फील करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टरों ने जो है मुकम्मल तौर पे उसको कहा कि हम तो ये इसका इलाज नहीं करेंगे, वो तो जो है वो। और गवर्नर साहब ने कहा कि बड़े गजबनाक हुए उस वक्त गवर्नर जो थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये हकीम को वापस भेजो और डॉक्टर इसका इलाज करेंगे। लेकिन जब नवाब साहब को होश आई तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे सिर्फ और सिर्फ ये नॉलेज है, मेरे हकीम साहब ये इलाज करेंगे। डॉक्टरों से मैं जो है वो 2 माह से पहले भी दवाई खा चुका हूँ, वही दवाइयाँ जो है बार बार मुझे देते जा रहे हैं। तो इस दिक्कत से मैं डॉक्टरों से इलाज नहीं करवाऊंगा, बल्कि जो है हकीम से ही इलाज करवाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने जो है गवर्नर साहब को भी जो है लेटर लिख दिया कि मैं जो है तार भेज दी कि मैं सिर्फ और सिर्फ हकीम साहब से इलाज करवाऊंगा। तो इस तरीके से उनका इलाज जो है जारी रखा। बड़े मुख्तसर सी चीजें क्या उन्होंने दिया जी, उन्होंने जो है अनाब, सपिस्ता और बहीदाना, ये 3 चीजें उन्होंने जो है कूट पीस के उनको पिलाई। उसके बाद जो है उन्होंने जो है सुबह शाम उनको दिया और साथ जो है वो इनको जो है वो खाने के लिए थोड़ा सा जो ये दही साथ जो है वो पानी ही पिलाते रहे। तो चंद जो है वो 2 दिन के बाद उनका बुखार भी उतर गया, उनकी सोच भी खत्म हो गई और मुकम्मल तौर पे जो है वो सेहत याब हो गए। तो डॉक्टर साहब और जो है गवर्नर साहब यही कह रहे थे कि ये जो है ना बंदा जो मारेगा इसको, मतलब जो है ना नवाब साहब को। लेकिन अल्लाह की रहमत से जो है नवाब साहब बिल्कुल सेहतमंद हो गए। तो उन्होंने जो है अकीदत के तौर पर हकीम साहब के हाथ चूम लिए। तो अभी जो है ये हमें जो है लोग जो है ये मिलने आते हैं ना, जब हकीम को जो है मिलने आते हैं तो वो जो है सलाम करने नहीं आते, बल्कि जो है वो हमें जो है वो हमें जो है वो सलाम करने नहीं आते, बल्कि वो हमारे जो है वो खास तौर पे जो है वो हमें मिलने आते हैं। तो इस तरीके से हकीम साहब ने उनका जो है वो नवाब साहब का इलाज किया। उन्होंने ये बताया, हकीम साहब के तशखीस देखे, वो नमूनिया को कह रहे थे नमोकोकस की वजह से हुआ है, ये हो जाता है वो हो जाता है। अजीब से उनके फलसफे जो है, मुझे तो जो है ये अपने भाइयों के फलसफे समझ नहीं आते। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको भी उन्होंने इस डगर पे जा लगा लिया, क्योंकि अब साफ है हमारे ग्रेजुएट्स को वही लोग पढ़ा रहे हैं जिनको तिब का जो है वो 0.000% भी इल्म नहीं है, वही क्लिनिकल मेथड पर आ रहे हैं। तो मैं जो है क्या कह सकता हूँ। तो इसमें जो है जब तक जो है तबीब नहीं पढ़ाएगा उनको, तो उनको जो है वो हकीकत नहीं आएगी। तो ये मैं जो है कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है उन्होंने बताया कि इनको जो है गुशाए मखाती, यानी कि जो है हमारे गले के अंदर जो गुशाए मखाती होती है उसके अंदर जो है सबूरात, सबूरात कहते हैं फिंसी फोड़ों को, हल्के हल्के फिंसी फोड़े हो गए, जिसकी वजह से इनका जो है मेदा से खुराक वाली नाली से लेके जो है वो मेदा की पूरी जो है दिलिया जो है वो गुशाए मखाती उसको कहते हैं हम। यानी कि गुशाए मखाती जो आप
इंडोडर्मल को आप कह लें, तो ये इनकी जो है इनके अंदर जो है ये आपकी जबान में मतलब जो हमारे ग्रेजुएट्स उनके लिए कि बॉयल हो गए, उनके अंदर जो है जख्म हो गए, उनके अंदर जो है फोड़े पिलसियाँ हो गई, जिसकी वजह से जो है खा नहीं सकते थे कुछ, और जिसकी वजह से उनको बुखार भी था और ये सारा कुछ था। तो जो मैंने स्पेशल इनको तजवीज़ किया दही का पानी, तो उससे जो है ये उनको जो है वो तरी महसूस हुई, तो जिसकी वजह से उनके जो है वो जितनी भी जो है चीज़ें थी उनके अंदर बेहतरी आनी शुरू हो गई। इसी तरीके से गज़ा की नाली के अंदर जो है ये जब मैंने उनको अनाब सपिस्ता और ये चीज़ें दी, बही दाना, तो लुआब बही दाना बेसिकली तौर पर हमारे वरम को तहलील करता है और सबूरात को जो है वो दुरुस्त करने में अहम किरदार अदा करता है। और इसी तरह सपिस्ता जो है वो बलवी झिल्ली से अखराज की जो है वो बेहतरीन किरदार अदा करता है। और इसी तरीके से जो है वो उन्होंने जो है ये तीसरी चीज जो अनाब दी, अनाब जो है वो एंटीसेप्टिक है और ज़बरदस्त किस्म का जो ये एंटी एलर्जिक है। तो ये तीनों चीज़ों को उन्होंने दे के जो है हकीम साहब ने उनका जो है 2 दिन में मुकम्मल तौर पे बुखार भी ख़त्म हो गया और सबूरात भी ख़त्म हो गए। इस तरीके से मुकम्मल तौर पे जो है ये उनकी जो है ज़बरदस्त तशखीस से जो उनको आराम हुआ है। इसी सूरत में जो है वो इलामा इकबाल जो है हकीम साहब के बारे में फरमाते हैं, रखता है अबर अब तक मैं खाना शरक, रखता है अब तक मैं खाना शरक, वो मैं जिससे रोशन हुआ अदराक, अदराक सोच। तो जो सोच जो है ये हकीमों की सोच अलहदा है और जो है हमारे भाइयों की सोच जो है वो अलहदा है। यानी कि दोस्तों की सोच और भाइयों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, तो ये कभी भी जो है नहीं मिल सकते आपस में। तो एक हमारे मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि एक उधर हमारे चस्ट स्पेशलिस्ट है, वो एक तरफ लट्ठी का शरबत और उसके साथ इशक पेचा और साथ शतूत का शरबत दे रहे हैं, हमारी तीनों चीजों की मिलावट करके, और साथ एंटीबायोटिक दे रहे हैं। तो अब ना बलगम निकलेगी ना ही वो एक्सपेक्टोरेंट है हमारी दवाइयां जो है, अब उसको तो पता ही नहीं है। वो कहते जी मुझे तो मेडिकल लैब में बताया था कि ये खांसी के लिए मुफीद है, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। और भाई इसको समझो, ये देसी दवाई है, इसको समझ के तुम लिख सकते हो। जब तुम अलग में भी नहीं जानते देसी चीजों की तो कैसे लिख रहे हो? हमारी समझ से सारी बातें बाहर है। तो आगे जो है हकीम साहब ने जो है एक और सेठ साहब का इलाज किया। ये सेठ साहब भी जो है ये बड़े बहुत ज़्यादा जो है बीमार थे और लाहौर से जो है दिल्ली तशरीफ लाए, हकीम साहब के मतलब पे आए। तो हकीम साहब ने उनका चेकअप किया, तो हकीम साहब ने बताया कि इनको जो है ये वर्मे गुर्दा है, वर्मे गुर्दा है जिसको हम जो है ये किडनी का जो है ये सोजिश भी कह सकते हैं, या इसको जो है वो कलाए गुर्दा भी हम इसको कह सकते हैं, मुजमिन है। तो इसको हम जो है मुख्तलिफ अल्फाज में जो इसका नाम जो है वो देते हैं जी। तो हकीम साहब ने कहा कि 1.5 माह मेरे पास रहना पड़ेगा, अगर आप दिल्ली में 1.5 माह रह सकते हैं तो मैं आपका इलाज शुरू कर दूंगा, अगर नहीं रह सकते तो आप जो है मुझे, उन्होंने जो है तकरीबन 6 माह वो जो है वो हमारे दूसरे भाइयों से दवाई जो है वो खा के आ चुके थे, जिसमें बड़े बड़े सिविल सर्जन, बड़े बड़े जो है वो फिजिशियन और बड़े बड़े जो है वो डॉक्टर और बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या उसमें शामिल थे, जिनसे उन्होंने जो है वो इंग्लैंड से भी दवाई उन्होंने खाई थी। उस वक्त इंग्लैंड का बड़ा रवाज था, वहाँ के फिजिशियन जो है वो आके जो है वो पाकिस्तान में जाइए बड़े सगीर में दवाई दिया करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं 1.5 माह छाड़ के तो 3 माह जो है यहाँ पे रह लूंगा, मुझे फायदा होना चाहिए। तो हकीम साहब ने उसको सादा सी दवाई ज्वारा जरूरी अमरी, बड़ी जबरदस्त दवाई है जी, मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ वर्मे गुर्दा के लिए, वर्मे हालबैन के लिए। और इसके बाद जो है और शरबत ये मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, अरक ब्रंजा सिर्फ और शरबत कासनी के साथ जो है इसको इस्तेमाल करवाता हूँ मैं। इसके लिए जो है मैं करवाता हूँ सौंफ, अरक गौजबान, अरक सौंफ, अरक ब्रंजा सिर्फ और अरक मको और अरक कासनी, ये चारों अरक जो है मिला के जो है मैं इसको इस्तेमाल करवाता हूँ। और स्वाद जो है वो मौजूद नबीतल वर्द या जो है वो जो दोबारा ज़रूरी या दोबारा ज़रूरी अमरी नुस्खा कला, उसकी मतलब कि जो है वो अलामात के मुताबिक मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। और इसी तरह से गुल बबूना
गुल बनफशा, गुल खत्मी और कीनुल मुल्क और मको खुश की जो है उन्होंने जो है वो ऊपर, और आबे मको सब्ज बराबर। मेरे दोस्त जानते हैं कि मको का फाड़ा हुआ पानी वो उसको पीने के लिए जो है वो नीम गर्म करके जो दिया, और ऊपर लेप करने के लिए जो पहले दवाइयाँ मैंने जो है उससे पुदीना भी दी, जिससे उसकी कैब वगैरह रुक गई। और नवाब साहब ने जो है चंद दिनों में जो है खाना पीना जो है वो शुरू कर दिया। उनको जो है पेशाब भी आना शुरू हो गया जो रुका हुआ था, और उनका पेट जो बड़ा भारी हो चुका था, जिसम के ऊपर सोजे पड़ चुकी थी, और खास तौर पे जो है पूरा चेहरा स्वेल हो चुका था। तो वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे जो है वो आना शुरू हो गया, और नवाब साहब तीसरे चौथे दिन जो है वो चलने के काबिल हो गए। इस तरीके से उन्होंने जो है वो जरूरी अमरी हमरा जो है अरक ब्रंजा सिप को जो है वो जारी रखा, और शरबत कासनी का इस्तेमाल जारी रखा, और उससे पुदीना का इस्तेमाल जारी रखा। और खाने के लिए उनको सब्जी, गोश्त और फलों में जो है अनार, संतरा और अमरूद को जारी रखा। इस तरीके से जो है सुबह शाम हवा को का मशवरा दिया। तो तकरीबन 15 दिन में जो है नवाब साहब मुकम्मल तौर पर जो है सेहतमंद हो गए, और लेकिन उन्होंने जो है दवाई को 1 माह तक जारी रखा और वापस चले गए। इस तरीके से जो है बम्बई से उन्होंने जो है ये दवाई दोबारा जो है उनको मंगवाने की हिदायत की, लेकिन वो जो है उनको जो है दवाई की ज़रूरत नहीं थी, उनको जो है वो दवा की ज़रूरत थी। यानी कि हकीम साहब ने सिर्फ उनको दवा दी कि अल्लाह ताला तुम्हें और भी सेहत कामला और आज़ाद जो है वो अता फरमाए। इस तरीके से जो है वो हकीम साहब के जितने भी कारनामे हैं, या हकीमों के जितने भी कारनामे हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो हैं। तो इस तरीके से जब तक हम मतलब को नहीं पढ़ेंगे, मतलब क्लिनिकल मेथड को हम नहीं पढ़ेंगे, तिब्बी लिहाज से नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक जो है हम कामयाब हकीम नहीं बन सकते। तो डॉक्टर साहब के 3 मुतालबे मैंने आज पढ़े हैं। उसमें जो है सबसे पहला मुतालबा डॉक्टर साहब का था डॉक्टर ऑफ नेचुरल मेडिसिन, और दूसरा मुतालबा डॉक्टर साहब का सर्विस स्ट्रक्चर था। तो डॉक्टर साहब का दूसरा मुतालबा सर्विस स्ट्रक्चर है। जब सर्विस ही नहीं रहेगी तो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? तो सर्विस हमारी रहने के लिए जो है ज़रूरी है कि हम जो है वो तामन करें एक दूसरे के साथ, और जिसमें जो है वो सर्विस जो है हम तभी बहाल कर सकते हैं जब यूनिवर्सिटी के तलबा, हमारे तिबिया कॉलेज के तलबा और तमाम लोग जो है ये अपने अपने मोटिवेट करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि वो हमारे जो है वो हॉस्पिटल जहाँ पे भी हमारी डिस्पेंसरी चल रही है उनके अंदर जो है वो कम से कम जो है वो एक रोजाना जो है 2-4 मरीज जो है भेजे। तो इस तरीके से जब हमारी सर्विस रहेगी तो हमारे सर्विस स्ट्रक्चर भी जरूर बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा सारा सिलसिला जो है जारी रहेगा। तीसरा मुतालबा सर का मैंने देखा है आज, कि तीसरा मुतालबा है कि हमें DHQ और THQ में जो है ये हाउस जॉब की जो है इजाज़त दी जाए। तो डॉक्टर साहब से जो है मैं पहले जो है वो जब हमारे AMS साहब थे उनकी भी मुलाकात मैंने डॉक्टर साहब से करवाई थी। उसके बाद DMS साहब की भी मुलाकात जो है डॉक्टर अली साहब की भी, उन्होंने जो है वो आपको तरीकाकार बता दिया था। हमारे 3 माह के अंदर जो है हमारे पास पूरा हॉस्पिटल का चार्ज रहा है। वो हमारे डॉक्टर गुलाम सरवर साहब जो MS थे वो MS बने। वो मेरे पास आके जो है अक्सर बैठते थे, चाय वगैरह पीते थे, कहते रमजान को मसला है तो बताओ, कोई मुतालबा है तो करो। तो मैं जो है बार बार आपसे जो है अभी वो रिटायर हो गए, ये 3 जून को रिटायर हो गए। तो मैंने बार बार जो है ये अपने वेबिनार में जो है बार बार रिक्वेस्ट की कि सर अपने बंदों को भेजें, अपने बच्चों को भेजें, हम उनको अकोमोडेट करेंगे, हमें जो है ये हम इनको अकोमोडेट करेंगे। लेकिन अभी तक किसी ने कोई जो है नहीं भेजा। 3 माह का पीरियड जो है वो गुजर गया उनका। हम उनको 3 माह के लिए तो कम से कम अकोमोडेट कर देते तो आगे जो है तो उन्होंने जो है वो चल जाना था, तो हमारा सिलसिला जो है जारी हो जाना था। डॉक्टर साहब ने मुझे डॉक्टर गुलाम सरवर साहब अल्लाह उनको जो है वो जिंदगी और जो है वो रहमत पे जो है वो अता करे, तो मेरे पास आके अक्सर बैठ के जो है वो मुझसे जो है वो बड़े प्यार मोहब्बत से जो है वो गपशप लगाया करते थे। तो वो रिटायर हो गए अब। तो ये चीज़ जो है मैंने बार बार जो है अपने ग्रेजुएट्स के लिए जो है अपॉर्चुनिटी पहले भी मैंने कोशिश की थी, अलीशा साहब के साथ जाके हमने कोशिश की थी, और हमने ये प्रोवाइड भी किया था उनको ये प्लेटफॉर्म, लेकिन हमारे अपनी गफलत की वजह से वो प्लेटफॉर्म जो है वो ख़त्म हो गया। तो दोबारा हम उसको बहाल करने के लिए जो है वो आपने जितनी भी कोशिश की
اس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بھی جو آپ کے ساتھ جو ہے جا کے جتنا بھی مجھ سے تعاون ہو سکا میں نے کیا. تو اس طریقے سے ہم جو ہے ٹی ایچ کیو میں جو ہے وہ تو نہیں ہمارے ڈی ایچ کیو میں جو یہ چیز جو ہے LI2 میں جو ہے یہ سہولت مہیا تھی, لیکن جو ہے وہ آپ لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھا سکے, جس کے لیے آپ نئے ایم ایس صاحب آئے, ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. تو ظفر اقبال صاحب ہمارے نئے ایم ایس صاحب آئے ہیں, تو اس طریقے سے جو ہے یہ ڈاکٹر انصر صاحب ہمارے ایم ایس نئے آئے ہیں. تو ہر بندے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, آپ وہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. تو 3 ماہ تک جو ہے ہمارا جو ہے یہ مکمل طور پہ جو ہے وہ LI2 میں جو ہے ہولڈ رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ میرے ایم ایس رہے ہیں, امیڈیٹ باس تھے, تو اس لیے میرا ان سے بڑا جو ہے وہ قریبی تعلق تھا. اور میں آپ کے سامنے میں نے ڈاکٹر صاحب کو سوئے ہوئے کو ہم نے گھر سے جو ہے وہ طلحہ صاحب اور آپ جب میرے پاس آئے تو ان کو وہ سوئے ہوئے تھے, تو ہم ان کو جگا کے جو ہے باہر وہ انہوں نے جو ہے وہ اوپر ٹی شرٹ پہن کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ تصویر کروائی, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اور وہ پجامے پہنے ہوئے تھے, پورے نائٹ ڈریس میں تھے, تو انہوں نے اوپر سے پینٹ پہن کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ باہر بیٹھ کے تصویر بنائی. اتنا کوآپریشن انہوں نے آپ سے کیا, تو اس سے بڑا اور کوآپریشن جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے تینوں مطالبے آپ کے جو ہے یہ ہم اس طریقے سے جو ہے اب ہم نے وقت کو ہاتھ سے کھو دیا, جب ہمارے پاس جو ہے وہ ہاتھ میں وقت تھا. ڈی ایم ایس ہمارا اپنا تھا, اے ایم ایس ہمارا اپنا تھا, اور ایم ایس ہمارا اپنا تھا. تو ہم جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا کے جو 3 ماہ کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے ہم ایڈجسٹ کر سکتے تھے, اپنے گریجویٹس کو ایڈجسٹ کر سکتے تھے. تو اب جو ہے نئے صاحب جتنے بھی آئے ہیں ان کی مرضی ہے, تو اس کے لیے جو ہے میں نہیں کچھ کہہ سکتا. تو تینوں مطالبوں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے جو ہے کیونکہ کونسل میں جو ہے یہ کنسیپٹ وہ صرف آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کیونکہ آپ جو ہے وہ شاہد ناز صاحب بھی ملتے ہیں اور فرید یونس صاحب سے ملتے ہیں, تو یہ سارا جو ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو ہے جو بھی باتیں ہوتی ہیں تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں. جیسے ہمارے جو ہے وہ سیاسی لوگ جو ہے وہ بڑے نعرے لگاتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ کام جو ہے ہیرو کی بجائے وہ زیرو ہوتا ہے. لیکن ہم جو ہے جو بھی بات کریں گے انشاءاللہ وہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اس میں جو ہے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ سچائی بھی ہوگی اور بڑائی بھی ہوگی. تو اس لیے جو ہے یہ انشاءاللہ جو ہے ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کہ ہم جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ اچھے کام کر کے جو ہے وہ گزارے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دنیا کے اندر اچھے کاموں کی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اصلاح کرے, اور ہمیں جو ہے وہ توفیق دے کے ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ اچھے کام کریں اپنے دوستوں کے لیے خاص طور پہ, اور بھائیوں کے لیے بھی جو ہے. اور اس لیے طریقہ سے ہمارا اور ان کی جو ہے وہ کلینکل میتھڈ مطلب اور ہر چیز میں میرے بھائی سب جانتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ہماری تشخیص کا طریقہ کار جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف طریقے سے جو ہے تشخیص کر کے وہ مریض کی جو ہے مکمل طے پر پہنچ کے جو ہے مرض کی طے پر پہنچ کا ہم وہ جو ہے وہ صرف آرٹیفیشل علاج کرتے ہیں. وہ خود بھی مانتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کنٹرول صرف کرتے ہیں, بلکہ جو ہے اس کو علاج نہیں ہمارے پاس جو ہے مکمل کیور نہیں ہے. وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ ہم کیور نہیں کر سکتے, بلکہ جو ہے اس کو ہم کور ضرور کر لیتے ہیں. کیور اور کور میں جو ہے فرق ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو جو ہے وقتی طور پہ کور کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کسی بھی چیز کا جو کیور نہیں ہے کہ ہم اس کو مریض کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے دوائیوں پہ لگا دیتے ہیں. ساری زندگی جو ہے یہ ڈائبٹیز کی دوائی بھی ساری زندگی کھلانی, بلڈ پریشر کی دوائی بھی ساری زندگی کھلانی, یہ جو ہے حل نہیں ہے. تو حل جو ہے اصل میں طب میں ہے, جو اس کی جڑ میں جا کے جو ہے مرض کے اصل سبب کو نوٹ کر کے جو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا, میں معذرت خواہ اگر میری کوئی بات ڈاکٹر صاحب کو بری لگی یا میرے جو ہے بھائیوں کو بری لگی. تو اس طریقے سے ہم جو ہے یہ جب بھی کسی ہمارے حکیم کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہے وہ بھائیوں کے جو کے دلوں میں بھی جو ہے ان کی محبت اجاگر ہو, کیونکہ وہ ہمارے افراز ہیں, ہمارے باوجداد ہے. تو جب ہم باوجداد کی کوئی بھی اپنے باوجداد کی تعریف کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جانتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور ان کو اس کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہماری تو خواہش ہے کہ ہمارے جو ہے یہ جو گریجویٹس ہیں وہ بھی جو ہے ہمارے جو ہے وہ باوجداد کی نسل جو ہے وہ کو سمجھے اور ان کے نقشے قدم پہ چل کے جو مریضوں کا اسی طریقہ سے علاج کرے. جیسے کہ
हमारे बाप दादा ने किया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।